بھرے بادلوں کی طرح. جیسے گزرے دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کیسے بادل کراچی میں برسے ہیں کہ لوگ دیر پا اپنے گھروں میں آ سکے، اور پوری کراچی لگ رہا تھا کہ جیسے پانی کے ساتھ ڈوب چکی ہے. اس سے زیادہ برکتیں ہیں خدا ان کے پاس میرے لیے اور آپ کے لیے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ کے پاس آپ کے لیے برکتوں کے گفٹ ہیں خدا کے پاس. صرف لینے کے لیے ہمیں خدا کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے. آمین. میں خدا باپ، خدا بیٹے، روح القدس کا شکر گزار ہوں. وقت ہے میرے پاس آدھے گھنٹے کا، اور میں پوری کوشش کروں گا خدا کا زندہ کلام جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے، آپ کے گوش گزار کیا جائے، تاکہ میں کلام کے بغیر ہم تر و تازہ نہیں ہو سکتے، خوشحال نہیں ہو سکتے. اور میں کلام کی خدمت کر کے چاہتا ہوں کہ ہم خوشی کو محسوس کریں. اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں. تھوڑا سا ادھر ہو جائے. مین آف گاڈ، خدا کے خادم پاسٹر جوائس، جیسے انہوں نے تعارف کرایا کہ ہم ایک ساتھ ہیں، اور یہ ساتھ آج سے نہیں ہے، جب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. نوجوان بھائی اور میری بہن جو ہے بوا جی، اور یہ بالکل خاندانی ہمارے لنک رہے ہیں. روحانی بہت گہرے لنک ہے، اور جسمانی بھی ہمارے بہت زیادہ لنک ہے. ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے. آج جو ہے میں چاہتا ہوں کلام مقدس کو میرے ساتھ کھولیں تاکہ ہم چند باتوں پر غور کریں گے. میں ٹھیک نہیں تھا، میں نے بہت دعا کی، اور میری مسز نے بھی بہت دعا کی. میرا پورا گھرانہ ان دنوں میں بیمار رہا. میرا بڑا بیٹا جو ہے کلیگنس سیمول، میری بیٹی شالم سیمول جو ہے. 2 بچے ہیں میرے. خدا کی شکر گزاری. ایک بیٹا میرا جو ہے وہ کوالیفائڈ نرس ہے، میڈیکل سے لنک ہے. میری بیٹی بھی پڑھ رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے. تو میرے بچوں نے بھی دعا کی، اور میں بیچ میں جب طبیعت زیادہ خراب ہو رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ بولا نہیں جائے گا. بخار چڑھ رہا تھا بہت زیادہ، گلا خراب تھا، مگر مجھے خدا نے زور دیا. پاسٹر جی نے آج مجھے پوچھا بھی کہ پاسٹر جی آر یو ریڈی؟ میں کہ یس، میں تیار ہوں، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے. ہاللیلویا. خدا کا کلام ہمارا زور ہے. ہاللیلویا. اگر آپ تالیاں بجانا چاہتے ہیں نا یسوع کے لیے، تو میری درخواست ہے کہ زور سے بجا دیں تاکہ پولیس کو پتہ چل جائے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیونکہ اب پولیس کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ زندہ کلیسیا ہے، یہ خدا کی کلیسیا ہے، یہ مسیح کا بدن ہے. ہاللیلویا. ہمارے اندر ڈر نہیں کسی قسم کا ہونا چاہیے، ڈر نہیں ہونا چاہیے. آج ہم 2 قسم کے ڈر پر بات کریں گے. ایک ڈر وہ جو ہم خدا سے ڈرتے ہیں. آمین. ہاللیلویا. ایک ڈر وہ ہے جو ہمیں ہمیشہ جو ہے ابلیس کوشش کرتا ہے ڈرانے کی. مگر دیکھیں گے پاورفل ڈر کون سا ہے، اور کس میں ہماری برکت ہے، کس میں ہماری ترقی ہے. میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے میں پاسٹر جوائس سے درخواست کروں گا کہ کوئی ایک شخص مجھے مل جائے حوالہ پڑھنے کے لیے. کوئی ایک شخص جو اچھے طریقے سے اردو پڑھ سکے، تو میری ذرا مدد ہو جائے گی. میں زیادہ طاقت لگا کر صحیح طریقے سے بول نہیں پاؤں گا، مگر میں ضرور خدا کی قدرت میں یہ ساری باتیں کر سکوں گا. کوئی ایک مائک لے کر، ایک بائبل لے کر ضرور میرے پاس یا کہیں پر بھی بیٹھ جائیں قریب، تاکہ ہم ان ریفرنس کو بھی پڑھیں. میں چاہتا ہوں کہ آج ہم برکت پائیں. آمین. میں ڈر سے ایک چھوٹی سی ٹیسٹ منی شیئر کرتا ہوں. پاسٹر جی سے بھی میں نے کی ایک دفعہ، ان کے ساتھ پرسنلی میری بیٹھ کر بات بھی ہوئی. میں آپ کو یہ گواہی دوں گا، میرا ایمان ہے کہ آپ خدا کی خوب تعظیم کرتے بھی ہوں گے. یہ نہیں کہ آپ نے چھوڑی بھی ہے، مگر یہ موٹیویشن جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے لیے، ہم جب گواہی سنتے ہیں تو میری یہ پرسنل گواہی ہے. آج جو مجھے نام خداوند نے دیا اور برکت دی، میں شاید اس لائق نہیں تھا، پستی میں تھا. تو آج سے 30 سال پہلے میں ایک نوجوان بچہ تھا، یوں کہہ لیں. اس سے بھی پہلے کی بات ہے، تقریباً 34 سے 35 سال ہو گئے. میں بیمار تھا.
सुनिएगा, गौर कीजिएगा थोड़ी देर। ये बातें अगर मिस हो गई, खुदा का कलाम मिस हो गया, तो फिर हमारी झोलियाँ खाली जाएंगी। मगर खुदा चाहता है कि आपकी झोलियाँ भर जाए। हालेलुया। आपकी झोली भरकर जानी चाहिए। खुदा के हजूर आने वालों के लिए खुदा के हजूर से झोलियाँ भर कर जाए, क्योंकि खुदा हमारा बरकत का खुदा है, बरकत का मंबा है। वो आज हर चीज आपको दे के देता है। 30 से 34 से 35 साल पहले मैं बीमार था, एक बीमार शख्स था, और दो तरह की मुझे तकलीफ थी बदनी तौर पर। एक तो मेरे मैदे में प्रॉब्लम थी, जख्म था बहुत बड़ा, और साथ साथ मेरे इस कमर की साइड पर मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता था, हम चौकी पर सुपरवाइजर था, तो मुझे एक स्नेक ने काट दिया। तूड़ी के अंदर से एक सांप ने, एक छोटा कीड़ा सांप की तरह उसने काटा। मेरी स्किन खराब हो गई, सारी बैक स्किन खराब हो गई, कभी कभी वहाँ से खून भी निकलता था। और मैं इलाज करवाने के लिए, एक तो मैं खाना नहीं खा सकता था अल्सर की वजह से, एक मेरी ये प्रॉब्लम थी, और मैं हर रोज़ मेरे अंदर एक ही डर था, एक ही खौफ था कि मैं जल्दी मर जाऊंगा, मौत का डर। आज कई तरह के डर हैं, कई तरह का खौफ लोगों की जिंदगी के अंदर है। ये मेरे साथ चलता रहता। मैं कहाँ तक, कराची से पंजाब तक, सिंध तक अपना इलाज करवाने के लिए गया। आखिरकार मैं तंदुरुस्त नहीं हो सका, मेरी स्किन खराब हो गई, और मैं चलता रहा इस हालत के अंदर और तलाश करने लगा कि मुझे इन बीमारियों से, इस खौफ से, डर से मखलसी कौन दे। घर में बाइबल पढ़ी हुई थी, कभी कभी ये ऐसा ही है कई लोगों के साथ, घर के अंदर बाइबल है, कश्ती के अंदर यीशु है, मगर खौफ तूफानों का है। ठीक है, आज भी कई लोगों का यही हाल है, खौफ तूफानों का है। यीशु अंदर है, यीशु आना चाहता है, यीशु काम करना चाहता है, बात करना चाहता है, मखलसी देना चाहता है। मेरे घर के अंदर बेशक उस वक्त एक ही बाइबल होती थी, पढ़ने वाला भी कोई एक या कोई दो शख्स बाइबल पढ़ते थे, और खुदा के फजल से आज हर घर में हर शख्स की एक पर्सनल बाइबल है, क्योंकि वो खुदा को जान सके और वो पढ़ सके कि हमारा खुदा कितना कुदरत वाला है। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद मैं दूसरों के पीछे भागता रहा, और एक दिन ऐसा आया, मेरी वालदा जो थी, मेरी अम्मी जो थी, वो खुदा परस्त थी, और वो मुझे जाते आते कहती थी कि तू जब तक यीशु के कदमों में नहीं आएगा तो शिफा नहीं पा सकता। और खाली शिफा नहीं पानी, ये उनकी बहुत बड़ी खूबसूरत टेस्ट बनी। कह रहे खाली शिफा नहीं बेटा, आपने बदलना है, आपने निजात पानी है, आपके अंदर ये डर है। मैं रात को किसी वक्त भी उठकर बैठता था, रोता था, कराता था कि कौन होगा। और एक दिन मैं अपनी कंपनी में ही था, तो एक पर्सनल रूम के अंदर मुझे उन्होंने मैं दिया हुआ था कि ये बीमार शख्स है, तो वहाँ पर मैंने चंद बातें अम्मी की सुनी भी बोलना शुरू कर दी कि खुदावंद अगर तू जिंदा है, अगर तू कुदरत वाला है, मैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ से चल फिर कर धक्के खाकर आ चुका हूँ, अगर तू कुदरत वाला है, अगर तू जलाली है, जिस तरह मुझे बताया गया है तेरी कब्र खाली है और तू जिंदा है, तू अगर सब कुछ कर सकता है, जिंदगी दे सकता है, तो मेरे अंदर से ये डर को खत्म कर दे और मुझे जिंदगी दे। और मैं चाहता हूँ कि जब तक तू मुझे जिंदगी दे, जब तक इस रूहे जमीन पर मैं जिंदा रहूं, मैं तेरी गवाही दूं। और वो दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आया कि एक अजीब सी मेरे अंदर तब्दीली आ गई। मुझे मेरी कंपनी में क्या कहते थे, नाम दिया था, यार उस मुर्दे को बुला के ला। मजाक के तौर पर दोस्त कहते थे उस मुर्दे को बुला कर ला, कुछ ना कुछ तो उसे काम ले लो, कंपनी उसको जो है सैलरी देती है। मगर उस मुर्दे को जिंदा करने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं जब वहाँ से जल्दी से घर आया और पहली दफा मैंने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी जी, वो घर में सेन में कोई काम कर रही थी, मैं आज
آپ کے ساتھ اس زندہ خدا کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں جس کی باتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں. ہاللیلویا. سو پریز دی لارڈ. جب میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا تو میری والدہ, آپ کو پتہ ہے مائیں کتنی بچوں سے کیسی محبت کرتی ہیں, یہ آپ سب جانتی ہیں. جہاں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں بہت زیادہ, میں نے ماں کو تجربہ کیا ہے, خود بچوں کو مار لیتی ہیں اور پھر ساتھ 1-1.5 گھنٹہ رو بھی لیتی ہیں. مارنے کے بعد ان کو خود بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور میری ماں رونے لگی اس بات کے لیے کہ خدا تو نے آج اپنا جلال ظاہر کیا ہے. ایک ہی ڈر کہ مر نہ جاؤ کہیں پر, ایک ہی ڈر کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ایک ہی ڈر کہ شاید میں اب اس ڈر کے ساتھ پیرالائز نہ ہو جائے, مجھے کوئی اٹیک نہ ہو جائے. کم عمری میں یہ باتیں سوچتا رہا, مگر خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے جو زندہ ہے, جس کی قبر خالی ہے اور جو جلالی ہے اور جو ہمارے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی مدد کر رہا ہے, میری مدد کر رہا ہے. یقین جانے کہ چرچ کشمیر کو نہیں, ایک پاسٹر مصیر تھے, یورپ چلے گئے ہیں, مجھے ان کے نہ چرچ کا پتہ نہ گلی کا. میری والدہ سفر روڈ پہ تھی, میں چرچ کے اندر تھا. خدا کا پاک روح وہاں پہ لے گیا, اور جس دن میں نے پانی کا بپتسمہ لیا, توبہ کی, مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا تو جو مرضی کر لے, یہ سکن میں تیرے یہی مسئلہ رہے گا. سکن تیری خراب ہے, تیرا معدہ خراب ہو چکا ہے, السر ہے تجھے. اور جس دن میں نے توبہ کی اور پانی کا بپتسمہ لیا, جیسے خدا کے خادم نے یہ پاک سیکرامنٹ کے لیے مجھے تیار کیا اور میں سمندر پر گیا. 34 سال ہو گئے ہیں, میں کبھی ہاسپٹل اپنی بیماری کے لیے نہیں گیا. ہاللیلویا, گلوری ٹو جیسس, ہاللیلویا. آج تک میں اپنی بیماری کے لیے, جس بیماری کی میں بات کر رہا ہوں, میں ہاسپٹل نہیں گیا, اور کئی دفعہ ہاسپٹل سے لوگوں کو لے کر آیا ہوں. ہاللیلویا. یسوع کا نام لے کر, یسوع کے حضور جھک کے لے کر آیا. میں بیماری کے لیے نہیں گیا. ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارے ڈر کو نکالنا چاہتا ہے, اور جب ہم اس سے ڈرتے ہیں, سو ہم پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں سے جلدی سے میرے ساتھ, آپ کے پاس اگر کلام خدا ہے تو زبور نمبر 34 نکال, اور اس کی آیت نمبر 7 کو ہم اس کی تلاوت کریں گے, پڑھیں گے, اور اس سے ہم پڑھیں گے تاکہ ہم آج خدا کا کلام سیکھ سکیں. پہلے ڈر جو خدا ان سے ڈرنا ہے. جی بھائی جلدی سے. خداوند کے زندہ اور معتبر کلام میں سے زبور 34 اس کی 7 آیت کو تلاوت کریں گے. خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے. ان کو کیا کرتا ہے جی؟ خداوند کا فرشتہ کیا کرتا ہے ان کو؟ ابھی بھائی نے آیت پڑھی ہے مگر آپ نے شاید غور نہیں کیا. یہاں لکھا ہے کہ خداوند سے ڈرنے والوں کے لیے خدا کام کرتا ہے. خدا کا فرشتہ ان کے چاروں طرف کیا ہوتا ہے جی؟ خیمہ زن. اور پھر خدا ان کو کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے. خدا ان کو چھڑاتا ہے جو خدا سے ڈرتے. اب خدا سے ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ یہ سمپل باتیں ہوگی, مگر میرا ایمان ہے کہ ان سمپل باتوں سے آپ کی زندگی میں زیادہ تازگی آئے گی. گہری باتیں بھی خدا کرتا ہے, مگر آج جو ٹاپک ہے ہماری زندگی میں, آج کے دور کے اندر سب سے زیادہ ڈرایا جا رہا ہے, اور یہ ابلیس کا منصوبہ ہے, طرح بطرح کا ڈر. میں نے ڈرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے, ڈر کر بہت سارے لوگ اپنی اصل حقیقت کو کھو چکے. میں گھر میں گیا دعا کرنے کے لیے, تو ایک نوجوان بچہ بالکل جو مینٹلی طور پر درست نہیں تھا, تو میں نے ان کو پوچھا کہ جس کے لیے آپ نے دعا کے لیے بلایا, کہ یہ ایک 25 سال کا نوجوان ہے مگر اس کی حالت خراب ہو چکی ہے, یہ ہاسپٹل میں جاتا ہے, یہ لوگوں کو مارتا ہے, یہ اپنے کپڑے پھاڑ لیتا ہے, اس کو ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے اس کو چند سال پہلے ابلیس نے ڈرانا شروع کی. مختلف طریقوں سے اس کے اندر خوف پیدا ہونے لگا, اور جیسے خوف پیدا ہونے لگا اس کی ذہنی جو حالت ہے چینج ہونے لگا. آج ڈرایا جاتا ہے,
مگر یہاں پر دیکھیں خدا کا کلام جو میرے اور آپ کے لیے ہے, میری اور آپ کی بہتری کے لیے ہے. خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے جو لوگ خداوند سے ڈرتے ہیں, خدا کا فرشتہ انہیں کیا کرتا ہے, چاروں طرف خیمہ زن ہوتا ہے, اور خدا ان کو بچا لیتا ہے. ہمارا خدا ہمیں بچا لیتا ہے. تو ہمیں خدا سے ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ کیا مراد ہے خدا سے ڈرنے سے؟ خدا سے ڈرنے سے مراد خدا کے کلام اور خدا کے حکموں کی عزت کرنا. خدا کے کلام کی عزت کرنا, خدا کے کلام کی تابعداری کرنا, خدا کے کلام کو اپنے زندگی میں, اپنے دل میں رکھنا, تاکہ ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں. تاکہ خدا کے کلام کے مطابق چلیں گے تو خدا کا ڈر جو ہے وہ آپ کی زندگی میں قائم رہے گا. مثال کے طور پر آپ کو کوئی جھوٹ ہی بولنا پڑتا ہے, جب جھوٹ بلوایا جاتا ہے. جھوٹ تو آج کل بڑا عام سا قصہ ہو گیا. پانی کی طرح بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں, جیسے پیتے ہیں ویسے بولتے بھی. بہت سارے لوگ ہیں. جھوٹ پر بھی ایک بہت طویل تعلیم ہے جو سکھائی جاتی ہے. جھوٹ بولنے کے وقت اگر آپ کے اندر خدا کا کلام ہو اور خدا کا حکم ہو تو آپ یہ پڑھا ہو یا سنا ہو کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ جھوٹ نہیں بولیں. خدا کے حکموں کی تابعداری کرنے والا شخص خدا سے برکت حاصل کرتا ہے. اور آج ہمیں کیا کچھ حاصل ہوتا ہے؟ ہم اس زندہ کلام کی روشنی میں دیکھیں. ہمیں خدا سے ڈرنے کی ضرورت ہے, اور ڈرنے سے مراد خدا کے اس زندہ کلام کو اپنے دل میں رکھنا. جیسے زبور 119 ہم پڑھتے ہیں, اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے, خداوند میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا. کہاں رکھا ہے خدا کے کلام کو؟ اور بھی جگہ ہے رکھنے کے لیے, مگر داؤد کا جو چناؤ ہے اس نے کہا خداوند میں نے تیرے کلام کو کہاں رکھا ہے؟ اپنے دل میں رکھا ہے, تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. یہ حقیقت ہے, جب کلام, خدا کے حکم, خدا کی باتیں, اس زندہ کلام کو آپ اپنے دل میں رکھیں گے تو پھر گناہ نہیں ہوگا بلکہ خدا کی تعظیم ہوگی. ہاللیلویہ. خدا کی تعظیم ہوگی. خدا کے حکم ہوں گے تو خدا کی آپ تعظیم کریں گے, آپ پرستش کریں گے, آپ خدا میں رہیں گے. اور میں یہاں تک کہتا ہوں, آپ جہاں بھی جائیں گے ہر شخص کے لیے آپ کے پاس تسلی کا پیغام ہوگا. اس لیے ہمیں آج خدا کے کلام کی عزت کرنی ہے اور خدا کے کلام کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے, تاکہ ہم گناہ نہ کریں. اور گناہ جب نہیں کرتے تو پھر ہمیں خدا جو وعدہ کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ کی برکتیں آپ کے ساتھ ہو. نہیں تو گناہ کی حالت جب ہوتی ہے تو ایک اور بھی ہمیں ورس ملتی ہے, گناہ کی مزدوری موت ہے. اور بائبل جو ہمیں سکھا رہی ہے, سنیے گا غور سے, بائبل مقدس جو باپ کی مرضی ہے میرے اور آپ کے لیے, میرے اور آپ کے گھرانے کے لیے اور ساری دنیا کے لیے, کلیسیا کے لیے, مسیح کے بدن کے لیے, بائبل کہتی ہے کہ خدا جو ہے وہ کبھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, ہلاکت نہیں چاہتا. اور کبھی کوئی ایسا باپ اپنے بچے کی ہلاکت نہیں چاہتا, اپنے بچوں کی ہلاکت نہیں چاہتا. میں نے کوئی ایسا باپ نہیں دیکھا یا کوئی ایسی ماں دیکھی ہو جنہوں نے اپنے بچے کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا. ایسا کوئی خدا نہیں. اس لیے خدا سے جو لوگ ڈرتے ہیں, خدا اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے تاکہ انہیں چاروں طرف سے خیمہ زن ہو, تاکہ ان کو مشکلوں سے, پریشانیوں سے, بیماریوں سے, پریشانیوں اور بیماریوں سے, دکھوں اور مصیبتوں سے بچایا جائے.
जो लोग खुदा से डरते हैं खुदा उनको बचाता है, और जो लोग खुदा से नहीं डरते वो मुश्किलात में है, परेशानियों में है, मुसीबतों में है, बीमारियों में है और हर तरह की मायूसी में है। खुदा नहीं चाहता कि आप किसी हलाकत में। हमें खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देना है। और मैं बाइबल मुकद्दस जब पढ़ता हूँ, बहुत सारे ऐसे लीडर, बहुत सारे दुआया सूरमा, मैं जब देखता हूँ कि वो उनके अंदर खुदा का कलाम है, खुदा के हुक्म है, खुदा के कलाम को वो पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को वो अव्वल दर्जा देते हैं। उनके सामने बड़ी से बड़ी जो मुश्किल आई है, उन्होंने कभी भी किसी भी मायूसी का अपनी जिंदगी में वो नहीं देखा कि अब आज मुश्किल में है, आज हम मुसीबत में है तो हमारा खुदा कहाँ पर है। उनको पता है कि हमारा खुदा जो है वो हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हालेलुया। नारे से हम जो है ना थोड़ा जोश में आते हैं, बल्कि बहुत जोश में आते हैं। तो हमें इन लीडर्स को भी देखना है। मैं रात को दानियल की किताब पढ़ रहा था, गौर कर रहा था। वो वैसे ही मैं किताब पढ़ते पढ़ते दानियल की किताब में आया तो मैं उन 3 सूरमों के बारे में पढ़ रहा था। आप जानते हैं उनके बारे में, खुदा के 3 सूरमा जो थे। मैं देख रहा था कि उनको दबाने के लिए जो वहां के बादशाह नबूकदनेस्सर, उन्होंने खूबसूरत मूर्ति बना ली और उन्होंने प्लान किया कि इस मूर्ति को सजदा किया जाए। हर शख्स जो है इसको आकर सजदा किया, वक्त मुकर्रर किया, साजों का बजाना मुकर्रर किया, ताकि जो इस बादशाही में लोग हैं मेरी मूर्ति को सजदा करें, मेरी प्रस्तिश करें, मेरा नाम लें। मगर उस बादशाही के अंदर 3 रास्तबाज, 3 ईमानदार जो थे, उन तक ये जब ये मैसेज पहुंचा तो उनके अंदर उस सारी जो मैसेज सुनने के बाद कोई डर नहीं पैदा हुआ। मूर्ति बनाने के साथ, सजदा करने के साथ एक और भी फरमान जारी किया कि अगर इस मूर्ति को सजदा जिस शख्स ने भी ना किया, जिसने ना किया, उसको कहां डाला जाएगा? आग की भट्टी में। और इरादा यही था कि 1 गुना आग की भट्टी के अंदर, जो उसकी भट्टी की आग थी वो 1 गुना बढ़ाई जाए। मगर खुदा के लोगों ने जब उन तक मैसेज पहुंचा तो उन्होंने मैसेज बादशाह को दिया। अब वो खुदा परस्त आग की ना भट्टी से डर रहे हैं, ना खौफ है उनके अंदर, ना डर है उनके अंदर। और उनके अंदर जो डर है वो खुदा का है, खुदा के हुक्मों का है, खुदा का कलाम है। वो जानते हैं कि हमें खुदा आग की भट्टी से बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो जानते हैं कि हमारे अंदर खुदा है, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारा मददगार है। वो हमें आग की भट्टी से बचा सकता है, क्योंकि उसका कलाम कुदरत वाला है, उसका हाथ कभी है। वो आसमान जब खोलेगा तो आग की भट्टियां भी हमें जला नहीं सकती। ये याद रखें इस बात को। जो खुदा से डरते हैं वो इन खौफ में कभी जिंदगी नहीं गुजारते। दानियल को देख लिया, दानियल को सारी बातों का पता चल गया, उसके बावजूद दानियल के अंदर कोई खौफ नहीं है। 30 दिन तक उन्होंने कहा कि हर शख्स की दुआ बंद कर दो। मनसूबा बंदी है ये इब्लीस का मनसूबा है। 30 दिन तक की दुआ मत की जाए। और मैं समझता हूं कि आज के दौर में मैंने ये तजर्बा भी किया है कि किसी की 2 दिन दुआ बंद कर दो ना, उसकी दुआ ही बंद हो जाती है। और किसी की 3 दिन दुआ, हफ्ता बंद हो जाए, उसके लिए इतने मंसूबे बनाए जाते हैं, उसके लिए इतनी मसरूफियात उसके सामने आ जाती है कि वो दुआ, कई लोगों को देखा है कई सालों से दुआ छोड़ चुके हैं। और पास्टर जॉयस इस बात को जानते हैं कि हम ऐसे टीम के साथ रहे, ऐसे ग्रुप के साथ रहे, हमने पूरी रात दुआ की है। और आज भी खुदा के फजल से कई घंटों दुआ खुदा के हुजूर करते हैं। हालेलुया। दुआ रास्तबाज की सांस है, और जब हम सांस लेते हैं तो हमें सांस दुआ से हासिल होती है।
हमें दुआ करनी चाहिए। सो याद रखें कि जब दानियल दुआ करता था, जब शेरों की मान में डालने वाले जो दानियल थे और वो 3 खुदा के सूरमा जो थे, सदरक, मिशक, अब्दुल-नजूम, उन पर भी ये प्रेशर नहीं है, दानियल पर भी ये प्रेशर नहीं है, खौफ नहीं है, किसी किस्म का डर नहीं है। वो नहीं डरते क्योंकि उनके साथ जिंदा खुदा है। हालेलुया। उनके साथ खुदावंद है और उनके साथ खुदा का कलाम है, खुदा के वादे हैं, इसलिए उनके अंदर कोई डर नहीं कि हमें शेर खा जाएंगे, जाग की भट्टी हमें जला डालेंगे। आज भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालात, वाकयात, बहुत सारी बातें हमारे सामने हैं। डरना क्या, आज तो लोग बिजली का बिल पड़ जाए तो उस खौफ से डर जाते हैं और कई तरह से वो हुकूमतों को कोसना शुरू कर देते हैं, कई तरीकों से वो बातचीत करना शुरू कर देते हैं। मगर याद रखें, आपका खुदा आपके साथ है। अगर आप खुदा से डरते हैं, अगर खुदा के हुक्मों पर जिंदगी बसर करते हैं, तो खुदा हर एक आपकी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। हर एक जरूरत को पूरा करेगा, आपकी मदद करेगा। याद रखें, वो कभी भी आपकी जरूरतों को, जो आपकी जरूरतों की बात कर रहा हूं, ख्वाहिशें खुदा पूरी नहीं करता, खुदा जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। खुदा ख्वाहिशों को नहीं पूरा करता। ख्वाहिशें तो पता नहीं किस किस जगह से और किन किन ख्यालों से जन्म लेती हैं, मगर हमारा खुदा जो है वो ख्वाहिशों को पूरा नहीं करता, बल्कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। जरूरत अब छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। जरूरत कितनी बड़ी क्यों नहीं, कितनी छोटी क्यों नहीं, यहोवा खुदा वो सब कुछ पूरा कर सकता है। क्योंकि यहोवा खुदा को जब आप पुकारते हैं तो हम देखते हैं यहोवा यानी जो सब कुछ मुहैया कर सकता है, वो सब कुछ आपको मुहैया कर सकता है। सिर्फ हमने खुदा के कलाम की इज्जत करनी है। जब खुदा के बंदों को पता लग गया तो उन्होंने कहा, चलो भाई, अरे बादशाह, 3 बंदे तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा, अच्छा। बादशाह को आगे मैसेज दिया जा रहा है कि बादशाह तू क्या नहीं जानता। अब बादशाह को मैसेज दिया जा रहा है, ये मैसेज वही देगा जिसके अंदर खुदा का कलाम हो। बादशाह यहाँ भी आपको दुनिया में बहुत सारे मिलेंगे, मगर आपके अंदर कलाम होगा, आपके अंदर खुदा के हुक्म होंगे, तो खुदा आपको बोलने का फजल अता करेगा। हालेलुया। आपको बोलने का फजल और दलेरी का रूह अता करेगा। याद रखें, हमारा खुदा हमें दलेरी का रूह देता है, हमें कमजोरी का रूह नहीं देता ताकि हम झिझकते रहें। उसने कहा कि बादशाह तू नहीं जानता, क्या तू नहीं जानता कि जिस खुदा की हम प्रस्तिश करते हैं और जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, वो हमें आग की भट्टियों से निकालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो हमें निकालने की कुदरत रखता है, वो हमें आग की भट्टी में नहीं रहने देगा। बादशाह को गुस्सा आ गया, ये तो कोई और बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर इत्मीनान है, उनके अंदर खुदा के हुक्म है, वो खुदा से डरते हैं, वो इन आग की भट्टियों से नहीं, बादशाह के हुक्मों से नहीं, फरमान से नहीं, उनके अंदर कोई खौफ नहीं। और वो कहने लगा, यार ये इनको डराने के लिए एक और काम करो, आग की भट्टी 7 गुना जो है बढ़ा दी जाए। डाल दिए ना खुदा के लोग अंदर या नहीं डाले? पढ़ा होगा आपने कि तीनों खुदा के जो बंदा थे वो आग की भट्टी में डाल दिए। बादशाह कहने लगा, उन्हें पता लग जाएगा। हालेलुया। बादशाह से बड़ा किंग ऑफ किंग, हालेलुया, वो बड़ा आपका मेरा खुदा क्या है जी? बड़ा खुदा है। हालेलुया। वो किंग ऑफ किंग है, वो बहुत जोरावर है। और वो कहने लगे कि आप देखो इन तीनों का हाल क्या होता है। बाइबल कहती है उन्होंने अपने पहलवान जो थे ना, पहलवान जिनको उठा के वो बंदों को बीच में डालते थे, उनको भेजा जाके नजदीक करके इनको डालना, और लिखा है डालने वालों के हाथ जल गए। कभी इस चीज पर शक न करें, जो आपके लिए मनसूबाबंदी बनाएंगे हाथ उनके जलेंगे, मगर खुदा आपको आग की भट्टियों से निकालेगा। आपका खुदा जिंदा है, मगर उसका कलाम आपके
दिल में होना चाहिए। जो खुदा से डरते हैं खुदा उनको बचाता है, जो खुदा की इज्जत करते हैं खुदा उनको छुड़ा लेता है। खुदा ने उनको कहा, वो बादशाह कहने लगा यार ये पहलवान जिनको भेजा ये खुद चल गए हैं, क्या कर रहे हैं? बादशाह ने कहा भाई खुद जाके देखना पड़ेगा। बादशाह ने देखा आग की भट्टी के अंदर 3 डाले थे, चौथा कौन है? बादशाह को चौथे का दीदार हो गया। हालेलुया। बादशाह को खादमों के वसीला से चौथे शख्सियत का जो रवल फाज था, जिंदा खुदा था, दीदार हो गया। उसने कहा निकालो इनको अंदर से, ये तो कोई और लोग इन्होंने पहले बताया था, मुझे यकीन नहीं है, इनको निकालो, चेक करो। और जब चेक किया तो खुदा के लोग वैसे के वैसे थे। हालेलुया। आपके साथ खुदा होता है। मैं एक शेर लिख रहा था, भाई भी गीत लिखते हैं, मैं छोटा सा शायर हूँ, इनके लिए नहीं, क्योंकि मुझे बस ये बरकत खुदा ने दी है। मैं जब क्वायर में गाता तो मुझे बाहर निकाल देते थे, मेरे क्वायर लीडर कहते थे आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है। तो फिर एक दिन मैंने खुदा को रो कर कहा कि मैं आपकी प्रस्तुति नहीं कर सकता। उसने तो कर भी सकता और तू लिख भी सकता है। हालेलुया। मैं तुझे गाने की भी तौफीक दूंगा, मैं तुझे लिखने की भी तौफीक दूंगा। और ऐसे चंद गीत लिखे जो कराची शहर में खुदा ने बड़ी बरकत दी। मगर पास्टर जॉइस के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, बहुत अच्छी शायरी करते हैं, ये खुदा का फजल है। हालेलुया। तो मैं इस पर दानियल पर एक बात लिख रहा था, वो जरूर मैं आपके सामने रखूंगा। मांद में उसे फेंक दिया, शेरों पे बड़ा फख्र था। किसको? उस बादशाह को। मांद में उसे फेंक दिया, शेरों पे बड़ा फख्र था, शेर न कर सके कुछ भी, सजदों में उनका सर था, क्योंकि वो जानते थे कि दानियल का खुदा यहाँ पर है और वो कुछ ना कर सके, भले उस खुदा को वो सजदा करने लगे। तो याद रखें मेरे अजीजों, आपने खुदा के कलाम की इज्जत करनी है। जब आप खुदा से डरेंगे, आप खुदा के कलाम की इज्जत करेंगे, इसे अव्वल दर्जा देंगे, तो खुदा फरिश्तों को हुक्म देगा कि मेरे लोगों के चारों तरफ सबकी बात करना, मेरी आप सबकी। और वो खुदा जो है आपको क्या करेगा? बचा लेगा, आपको उन मुश्किलों से, परेशानियों से बचा लेगा। आज कई लोग बयान दे रहे हैं, बोलते हैं कि हमें बचाने वाला कोई नहीं। हो सकता है हमारी मखलसी के लिए कोई शख्स नहीं आए, मगर उन तक ये पैगाम दे कि जो लोग खुदा से डरते हैं खुदा उनको बचाता है, उनके लिए बड़े काम करता है। हम इसी ज़बूर नंबर 33 के अंदर आते हैं, तो उसकी 18वीं आयत पढ़े, वो आवाज़ से बुलंद, ताकि हम आगे बढ़े। चल एक दो आयतें मैं ज़रूर आपके सामने रखूंगा और फिर मैं ज़रूर पास्टर जो इसको आगे बुलाऊंगा ताकि हम दुआ कर सकें। आज हम खुदा का डर अपनी जिंदगी में मतलब के खुदा का कलाम लेकर जाए। जी 33 नंबर ज़बूर है, उसकी 18वीं आयत जोर से आप पढ़ें और ताकि काबिल गौर आयत ये सुनेंगे तो आपको जरूर बरकत मिलेगी। देखो खुदावन की निगाह उन पर है, देखो खुदावन की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उससे डरते हैं। ये काबिल गौर आयत है। देखो खुदा की निगाह किस पर है? उन पर है। खुदा की निगाह उन जिंदगियों पर है, उन बेटियों पर है, उन खानदानों पर है, उन बच्चों पर है, उन भाइयों पर, उन बुजुर्गों पर है जो उनसे डरते हैं। खुदा की निगाह पर। और जब खुदा सोचेगा खुदा की नजरें आप पर, तो दुश्मन आपके साथ कोई मनसूबाबंदी कर सकता है, आपके खानदान पर कर सकता है, आपके बच्चों पर कर सकता है। सिर्फ जो उससे डरते हैं, खुदा की निगाहें उन जिंदगियों के ऊपर है। आप सोचें कि हमें खुदा के कलाम को हमेशा अपने साथ रखना है। इसमें हर तरह की बरकत आपके लिए खुदा ने रख छोड़ी है, सिर्फ इसको खोलने की जरूरत है। आज मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी का, मगर मैं ज्यादातर जो तजर्बा कर चुका हूँ कि बाइबल मुकद्दस घरों में कम खोली जाती है,
मगर मैं आपकी बरकत के लिए बात कर दूं, इस बाइबल को हर सुबह आप खोलना शुरू करें। आपके घराने के अंदर खुदा की शादमानी और खुदा का कवी हाथ और खुदा की कुदरत आना शुरू हो जाएगी। मुझे एक हिंदू फैमिली है, उन्होंने छोटी सी टेस्टमनी है, उन्होंने पूछा कि पास्टर जी उनके घर में एक मौजज़ा खुदा ने किया, यीशु मसीह ने किया, बस मैंने उनके लिए दुआएं की। वो कहने लगे कि हमारी बेटी है, बहन है, उसको बदरुओं ने भद्रवा ने जकड़ लिया और उसकी शक्ल, ये जो गर्दन है पीछे चली जाती है और वो खा कुछ नहीं सकती। बहुत सारे लोगों को बुलाया, वो हिंदू थे, उन्होंने और भी लोगों से रब्ता किया और मैं आपको बरकत की बात बताने लगा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। जब खुदा का नाम बढ़ता जाए और वो काफ़ी लोग उनके घर आए, जूतियाँ उतार के भाग गए, बहन की हालत ख़राब। मुझे एक कॉलर से फ़ोन आया, कहने लगे पास्टर जी हमारे साथ एक बहन हिंदू काम कर रही है, इसके साथ ये कंडीशन, इसकी नंद है और वो गर्दन टेढ़ी हो जाती है, उसकी जीभ शक्ल हो जाती है, ये वो सब कुछ उन्होंने बताया। मैं समझ गया, मैंने कहा बहन आप फ़ोन पर मेरी दुआ बात करवाइएगा, मैं दुआ करूँगा और मैं यीशु नाम से उन बदरों को डांटूंगा। मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, रहाई उनको यीशु देगा। हालेलुया। रहाई कौन देगा? हमारा खुदावंद। और आपको खुदा की कुदरत के बारे में बताना चाहता हूँ। जो लोग अपने अंदर कलाम रखते हैं, तो जब उस बहन हिंदू ने स्पीकर खोला और मैंने कहा एक तेल की बोतल भी सामने रख ले, दुआ करेंगे, और दुआ करना शुरू की, तो कहने लगी कि वो बहन जो है उसके जिस्म में एक अजीब सी वाइब्रेशन शुरू हो गई और वो 10 मिनट के बाद ना वो यीशु को जानती थी, ना यीशु से वाकिफ थी, ना कलाम से, और वो जोर जोर से कहने लगी सिर्फ मुझे यीशु आजाद कर सकता है। हालेलुया। और उसने अपने घर से बदरुएं जाती भी देखी और वो आज तक आजाद है और अपनी बरकतों के लिए खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू किया। वो हर रोज कलाम पढ़ते हैं, हर रोज खुदा के कलाम का मुताले करते हैं। उन्होंने मुझसे स्पेशली बाइबल मंगवाई कि पास्टर जी हमारे घर में बरकत आनी चाहिए। अब वो हर छोटी बात के लिए कुछ साइकिल भी खरीद लें तो उसके लिए भी दुआ करवाते हैं। वो कहते हैं कि ये बरकत का हिस्सा है। सारी दुनिया के पास जाने के बाद उन्होंने यीशु नाम लिया और वो बहन आज़ाद हो गई। उसकी तलाक होते होते, सेपरेशन होते होते यीशु मसीह ने उसके घर को भी आबाद किया। तो याद रखें, खुदा उन पर अपनी नजर रखता है। थोड़ा सा और पढ़े भाई, आप पढ़ रहे थे, बस मेरे पास प्लीज 5 मिनट। जो उसकी शफकत के उम्मीदवार है, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार है, ताकि उनकी जान मौत से बचाए। ताकि खुदा क्या करे? उनकी जान मौत से बचाए। जो लोग खुदा से डरते हैं, खुदा उनकी जान मौत से बचा सकता है और खुदा उनको मौत से निकाल के जिंदगी में दाखिल कर सकता है। यह खुदा का कलाम हमें सिखाता है। हमें मौत से, जैसे मैंने अपनी टेस्टमनी दी है, आपके पास भी ये गवाही होगी, मुझे खुदा ने मौत से निकाला और जिंदगी में दाखिल कर दिया। हालेलुया। मैं तो सोच रहा था 20 साल की उम्र में मर जाऊंगा, मगर खुदा ने मुझे मरने नहीं दिया। हालेलुया। मैं जिंदा हूं और जब तक तू जमीन पर जिंदा रहेगा और जब तू मेरे पास आएगा तू जिंदा ही रहेगा। हालेलुया। ये मोहर है, शैतान मरहूम तेरे पर तू जिंदा रहेगा और खुदा ने मुझे नई जिंदगी दी, उसकी शुक्रगुजारी है। मैं बस एक आयत चाहता हूँ कि आपके सामने रखूं और उसके बाद हम जिस तरह पास्टर जो इस आगे मीटिंग मीट करते हैं वैसे ही करेंगे। ज़बूर नंबर इसी 34 की ब्रदर आप 8वीं और 9वीं आयत भी पढ़ दें प्लीज। आजमा कर देखो, आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है, कैसा मेहरबान है। आगे अब देखें, खुदा को कोई आजमा सकता है? आजमा सकता है कोई खुदा को? खुदा इतनी बड़ी हस्ती है, इतनी बड़ी ताकत कुव्वत है। अब कई ऐसे हैं, कई आजमाने भी चले जाते हैं खुदा को, मगर उन इसलिए खुदा ने ये दर्ज कर दिया कि तुम आजमा कर देखो, तुम आजमा कर खुदा को भी आजमा कर देखो, वो कितनी बड़ी हस्ती है। सो आगे क्या लिखा जी? मुबारक है वो आदमी, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है, जो उस पर तवक्कल करता है। खुदावन से डरो, खुदावन से डरो, ऐ उसके मुकद्दसों, ऐ उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं, जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं, उसको कुछ कमी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जो उनसे, जो खुदा से डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। ना उनको औलाद की कमी है, ना उनको किसी और चीज की कमी है।
आज कमियां गिनाई जाती हैं, क्या ख्याल है पास्टर जोश को भी तजर्बा हमें भी है, किसी घर में चले जो लिस्ट रखते हैं सामने, पास्टर जी ये कमी है, वो कमी है, इस चीज़ की कमी है, मगर याद रखें जो खुदा से डरते हैं खुदा उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहने देता। हालेलुया। किसी मिनिस्ट्री में वो कमी नहीं रहने देता। खुदा हर चीज को देने के लिए वो अपनी कुदरत रखता है। वो आपके दो जहान है, वो आपकी फिक्र करता है, वो आपसे प्यार करता है, आपसे, आपके घराने से, आपके बच्चों से, वो आपको खुशहाल देखना चाहता है, आपको तंदुरुस्त देखना चाहता है, और वो अपना आसमान आप सब पर खोलना चाहता है। हालेलुया। तो हमें वो कभी किसी, एक तो खुदा की निगाह जो है वो डरने वालों के ऊपर लगी रहती है, और एक वो किसी चीज की हमें कमी नहीं होने देता। आज हम स्पेशली इन चीज़ों के लिए प्रे भी करते हैं। मुझे पता है कि आज मेरे घर में इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है, ये कम है, वो कम है, ये कम है, ये सारी चीज़ें हम नोट करते हैं। मगर मेरे अजीज़ों, खुदा के लोगों, खुदा के बेटे बेटियों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बिंदा खादम, आप खुदा के हाथ में सब कुछ दें, वो आसमान को खोलेगा। हालेलुया। कमजोरियां होंगी, बीमारियां होंगी, कमियां होंगी, खुदा का बेटा यीशु मसीह जो जिंदा है और जिंदा रहेगा, वो पूरी करने की कुदरत रखता है। इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको खुदा बरकत दे। आमीन। हालेलुया।